everyone. This is Jaspreet Kaur. Subject is computer science of 12th class. The chapter is 1 and the topic is second. First chapter review of class +1 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਾਈਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਾਈਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੰਪਾਈਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਐਂਡ ਵਿਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਹਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਦੇ ਲਈ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਸ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਡ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਨਐਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਐਫ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੈਨਐਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਐਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ। ਮੀਨਸ ਸਕੈਨਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਫਲੋਟ ਹੋਵੇ, ਡਬਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਐਫ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਟੂ ਰੀਡ ਮਲਟੀ ਵਰਡ ਸਟਰਿੰਗ ਵਿਦ ਸਕੈਨਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸਟਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ is a set of values along with set of permissible
ऑपरेशनस ठीक है कहते डाटा टाइप अपने कोले की हुंदा सैट ऑफ वैल्यूज़ हुंदियां ने उहदे विच जिहदे विच की अपने कोले आपां ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हुंदा हैगा ठीक है उन्हां दे लई परमिसिबल ऑपरेशन दा जिहड़ा सैट हैगा उहदे नाल हुंदियां नेगियां ਇਹ ते हरेक डाटा आइटम है जिहड़ी ਉਹ ਆਪਾਂ यूज़ करदे आंगे प्रोग्राम दे विच हाँ कहते हर एक जो भी आप डाटा आइटम यूज़ करते हैं प्रोग्राम दे विच जरूरी हुंदा कि उन्होंने आप डिकलेयर कराइए या फिर आप इनीशियलाइज करवाइए ठीक है ये लिए जरूरी हुंदा हैगा। उस तो बाद अपने कोले नैक्सट है ठीक है ये अपने कोले तुहाडे कोले डाटा टाइप्स का एक मैं टेबल रेडी किया हैगा ठीक है जिस दे विच अपने कोले डाटा टाइप है डाटा टाइप तो बाद अपने कोले लेबल है उहदा साइज़ की है तो रेंज की है जिवें अपने कोले कैर है या साइंड कैर हैगा उहदा लेबल मतलब आपां नूं लिखदे किवें प्रोग्राम दे विच स्मॉल सी दे नाल कैर ठीक है। उस तो बाद साइज़ इहदा 8 बिट्स है ठीक है बिट्स दे विच साइज़ है ये ध्यान रखियो तुसीं ते रेंज उहदी कितनी है -128 टू 127 है। उस तो बाद अनसाइंड कैर है इहदा साइज़ 8 है ते रेंज 0 टू 255 है। उस तो बाद अपने कोले इंट साइंड इंट है ठीक है इसकी 16 है तो यदी रेंज ये है मतलब अलग अलग है। फ्लोट अपने कोले फ्लोट नूं आपां एक गल हो रही जिहड़े सारे लेबल्स ने आपां इन्हां नूं कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं ठीक है। कीवर्ड्स मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी कि हमेशा ये स्मॉल लैटर्स दे विच ही हुंदे ने जां कह लो लोअर केस दे विच ही आपां इन्हां नूं लिखदे आंगे ठीक है। नैक्सट अपने कोल है C operators are basically क्लासीफाइड ठीक है ਜਿਹੜੇ ऑपरेटर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्लासीफाइड ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ यूनरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਨਰੀ ऑपरेटर्स ठीक है तीन तरह के अपने कोले ऑपरेटर होंगे सी दे विच यूनरी हो गया बाइनरी हो गया टर्नरी हो गया ते आप हाँ तीन हो गए ऑपरेटर्स हो गए तो देयर आर 5 यूनरी ऑपरेटर यूनरी मीनस मतलब आप एक ही आप यूज़ कर देंगे ठीक है जो अपने कोले ऑपरेटर है वो आप एक यूज़ कर देंगे तो अपने को 5 तरह का यूनरी ऑपरेटर है तो 4 टाइप्स का अपने को बाइनरी ऑपरेटर्स ने बाइनरी के लिए आप 2 ऑपरेटर ने जोड़े वो आप यूज़ करते हैं सॉरी ऑपरेटर तो एक है आप 2 जिमें अल्फाबैट्स वगैरह वो आले दुआले बोल लो ठीक है वो आप 2 यूज़ करते हैं जिमें A+B तो A तो B की हो गया अपने को तो अपने को प्लस है जोड़ा बाइनरी ऑपरेटर हो गया मतलब वो अपने को 2 ऑपरेंट आप यूज़ करते हैं तो एक टर्नरी ऑपरेटर अपने को ठीक है जिमें यूनरी दिखाए थोड़े जे अपने को उस तो बाद अपने को की है प्लस माइनस मल्टीप्लाई ते डिवाइड वाले ये बेसिक अपने को अर्थमैटिक ऑपरेटर होंगे नेगे ठीक है जिवें तुसीं पढ़िया ही होना कि अपने को अर्थमैटिक ऑपरेटर्स ये होंगे नेगे तो ये अपने को आ गया स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ये सारे अपने को किहड़े हुंदे ने रिलेशनल ऑपरेटर होंगे ने जिहड़े 2 अपने को ऑपरेंट्स दे विच की दसदे ने रिलेशन दसदे ने कि उन्हां दा रिलेशन की है ए बी दे नालों वड्डा है जां बी ए दे नालों छोटा है ठीक है ये सारा कुछ है तो ये सारे ने जिहड़े आप यूज़ करते हैं इन्हों ताकि आप रिलेशनस ने जोड़े उन्होंने डिफाइन कर सकीए कि एक कॉन्सटेंट्स दे विच ते वेरीएबल्स दे विच जेड़ा अच्छा ठीक है जिवें वेरीएबल्स अपने कोले ते कॉन्सटेंट्स ने ठीक है इन्हां दे विच की अपने कोले रिलेशन है उन्होंने डिफाइन करन दे लई आपां ये ऑपरेटर्स ने जिहड़े उन्हां नूं आपां यूज़ करदे आंगे ठीक है। उस तो बाद अपने कोले आ गया जिहड़ी ये सी लैंगुएज है ये सपोर्ट्स करदी है वैरायटी ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की हुंदा आपां असाइन करना जिवें ए नूं आपां ए इंट ए बराबर 10 लिखता तो 10 की करता 10 वैल्यू आपां ए नूं असाइन करती ठीक है। ये थोड़ा जिहा तुहाडे कोल ये हैगा कि आपां एक तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है एक आपां शॉर्ट एंड्स आपां यूज़ करते हैं ठीक है वो आपां मैं इत्थे लिखिया है जिवें ए इक्वल्स टू A+1 है इनू लिखण दा एक तरीका है जिवें आपां कह दो शॉर्टकट दे विच लिखदे हां तो A+ इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हैं ये सेम ही चीज़ है ठीक है दोवां दा अपने कोले आउटपुट सेम ही आएगी ये अलग अलग तुहाडे कोल हैगे ने A इक्वल्स टू A-1 दे लई है डिफरेंट अपने कोले हैगा लास्ट ते A इक्वल्स टू A मॉडुलस B हैगा ठीक है। ये सारे अपने को डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स ने गे जिहड़े आपां सी दे विच यूज़ करते हैं। दैन हुण अपने को हैगा
ठीक है। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਾਈਨਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट, ठीक है। जिहड़ी प्रोग्राम स्टेटमेंट दे विच आपां किवें एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी चीज़ नूं, विच पहला स्टैप की होगा, फिर उस तो बाद की होना, ये सारा कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स दे विच आपां डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो अपने कोले की ने 3 टाइप्स दियां जिहड़े अपने कोले की ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स हुंदे नेगे, ठीक है। तुसी ये सारा +1 च रीड कर चुके हो विद डिटेल। हुण आपां +2 दे विच थोड़ा बहुता ही जानना है कि आपां नूं कि तुहानूं मैं एक तरीके दा रिवाइज़ करवा रही हां कि हाँ तुसी की कुछ पढ़िया सी +1 दे विच, ठीक है। 3 टाइप दियां अपने कोले कंट्रोल स्टेटमेंट्स ने। फस्ट हैगी अपने कोले कंडीशनल, ठीक है। तो कंडीशनल नूं आपां डिसीजन भी बोल सकते हैं कि आपां डिसीजन लैने जस्ट उस टाइम दे उत्ते। सैकेंड अपने कोले आ गया लूपिंग, तो थर्ड अपने कोले आ गई अनकंडीशनल। तो जिहड़ियां ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स ने इन्हां नूं आपां जंपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल नूं आपां जंपिंग बोलते हैं। उस तो बाद अपने कोले एक तुहाडे कोले चार्ट हैगा, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स ने उहदे विच 3 अपने कोले आ गई कंडीशनल, लूपिंग ते जंपिंग। जंपिंग अनकंडीशनल ने। अगे उस दे विच कंडीशनल दे विच किहड़ी-किहड़ियां आ गई अपने कोले इफ स्टेटमेंट आ गई, इफ एल्स आ गई, नेस्टेड इफ एल्स आ गई, एल्स इफ आ गई, तो स्विच स्टेटमेंट्स आ गई। ये सारियां थोड़ा जिहा मैं तुहानूं अगे फ्लो चार्ट च थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी। उस तो बाद अपने कोले आ गई लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग दे विच की हुंदा, फोर लूप हो गया, वाइल हो गया, एक डू वाइल हो गया, ठीक है। 3 तरीके दे अपने कोले लूप स्टेटमेंट्स हुंदियां ने। ते अपने कोले जंपिंग स्टेटमेंट्स आ गई, ब्रेक हो गई, कॉन्टीन्यू हो गई, ते गो टू स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है। ये सारियां अपने कोले जंपिंग स्टेटमेंट्स हो गई। उस तो बाद अपने कोले आ गई कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट दे विच अपने कोले फर्स्ट ते हैगा लैफ्ट साइड ते इफ स्टेटमेंट। इफ दे विच की हुंदा हैगा आपां कोई भी कंडीशन हैगी, ठीक है, जे ओह सैटिस्फाइड हुंदी है कंडीशन तां ओह ट्रू हो जूगी। मीनस जे ओह ट्रू हुंदी है, जे सैटिस्फाइड हुंदी है तां जिहड़ा कंडीशनल कोड है वह वर्क करूगा ते अपने कोले चल जूगा। ते फॉल्स वाला जे अपने कोले फॉल्स है तां डायरैक्ट अपने कोले ओह आउटपुट दे विच जाऊगा, ठीक है। यह हुंदी अपने कोले इफ स्टेटमेंट, मतलब एक कंडीशन हुंदी है ओनली, ओह ट्रू ही होएगी, ट्रू होएगी तो कंडीशनल कोड चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। उस तो बाद अपने कोले हैगी है इफ एल्स। राइट साइड ते मैं इफ एल्स दा बनाएगा फ्लो चार्ट। इस दे विच देखो की है, सब तो पहला अपने कोले स्टार्ट तो बाद इफ कंडीशन है, ठीक है। जे वो सैटिस्फाइड हुंदी है, मतलब कि वो ट्रू हो रही है तो इफ बॉडी है जिहड़ी वो परफॉर्म करूगी। जे वो कंडीशन ट्रू नहीं हुंदी तो अपने कोले एल्स वाली जिहड़ी बॉडी है, मीनस जे वो सैटिस्फाइड नहीं हुंदी तो फॉल्स होएगी, फॉल्स होएगी तो एल्स बॉडी है जिहड़ी ਉਹ वाली वर्क करेगी। तो ये दोवें जाने कित्थे जाणगियां, स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ तो बाद नीचे जाणगियां, मीनस इफ एल्स दे विच, ठीक है। ये अपने कोले होगी इफ एल्स, मीनस पहली इफ दे विच ओनली एक ही कंडीशन है, वो ट्रू ही होएगी। तो ये विच अपने कोले जे ट्रू हुंदी है तां भी अपने कोले आपां ओहदी बॉडी यूज़ कीती हुई है, जे अपने कोले फॉल्स हुंदी है तो ओहदे लई एल्स बॉडी है, ठीक है। ये दो मतलब कोड अलग अलग हो गए दोवां दे लई। उस तो बाद अपने कोले हैगा गा इफ एल्स स्टेटमेंट लैफ्ट साइड ते। इफ एल्स दा मतलब इफ एल्स इफ, ठीक है। इस दे विच की है, सब तो पहला अपने कोले इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन दे विच जे अपने कोले ट्रू हुंदा हैगा तां इफ ब्लॉक है जिहड़ा वो वर्क करूगा, ठीक है। जे अपने कोले वो कंडीशन फॉल्स हुंदी है तो नैक्सट एल्स इफ कंडीशन दे विच जाऊगा। वो फस्ट ते की सी पहला इफ कंडीशन है, जे वो सैटिस्फाइड हुंदी है, जे ट्रू हुंदी है तो अपने कोले इफ ब्लॉक चल जाएगा। अदरवाइज की है, जे वो फॉल्स हुंदी है तो नैक्सट एल्स इफ कंडीशन है जिहड़ी ओ वाला अपने कोले देखेगा। जे वो एल्स इफ कंडीशन सैटिस्फाइड हुंदी है तो अपने कोले एल्स इफ दा ब्लॉक चलेगा। जे वो नहीं हुंदी, फॉल्स हुंदी है तो अपने कोले एक होर एल्स इफ कंडीशन चलेगी, ठीक है। उस तो बाद जे ओ भी अपने कोले एल्स इफ ट्रू हो जाती है तो अपने कोले एल्स इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज अपने कोले एल्स ब्लॉक। तो ये अगे दी अगे एवें ही चलता जाता है। तो इनू आपां इफ एल्स इफ लैडर भी बोल देंगे हैगे, ठीक है। उस तो बाद अपने कोले राइट साइड ते आ गई स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट दे विच की हुंदा हैगा, जिवें पहला इफ एल्स दे विच तां मतलब एक परफॉर्म हुंदा, फिर दूजा चैक करेगा, तीजा करेगा। इहदे विच डायरैक्ट आपां जिस दे उत्ते जाना हैगा, जिस केस दे नाल रिलेटेड होगा, मतलब वन कंपैरिजन हुंदा स्टार्ट
ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ 2 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਹੀ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਫਾਲਸ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਫੋਰ ਲੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ i ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ i ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n, ਫਿਰ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ i ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ। ठीक है, ਜਾਂ i इंक्रीमेंट ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰ ਲੂਪ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ i ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਫੋਰ ਲੂਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਟਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨਸ i ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ i ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ n ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੂਪ ਚੱਲੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1 ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ n ਤੱਕ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, i ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ i ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਯੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਪ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਟ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ x ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਰ ਲੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 ਕਰਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, x ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10, ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੂਪ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ x ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 6 ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਤੱਕ ਇਹ ਟਰੂ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ x ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਇੰਟ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5, x ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10 ਤੇ x ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਲੂਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇੰਟ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5, ਮੀਨਸ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, x ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰ x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ x ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, x ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਡੂ ਵਾਈਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੂ ਵਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਡੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਡੂ ਦਾ,
फिर सैकेंड आप बॉडी के अंदर जावांगे, फिर थर्ड अपनी अपडेशन हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ अपने को कंडीशन अप्लाई की, तो उस तो बाद जे कंडीशन ट्रू होंगी है तो अपने को 5A हैगा, तो वो की चलेगा, मतलब उस तो बाद जो ये कंडीशन ट्रू होएगी उस तो बाद ही जो डू के अंडर लिखा होया सारा कुछ मतलब कि एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। अदरवाइज जो फॉल्स हो गया तो फिर की हो जाएगा, स्टेटमेंट है जो ਆਪਾਂ डू वाइल तो देख रहे ਸੀਗੇ कि जे ट्रू ਹੁੰਦੀ है स्टेटमेंट मतलब कंडीशन जे वाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ट्रू ਹੁੰਦੀ है तो वो की हो जाएगी, अपने कोले जो भी डू ਦੇ अंडर जो भी चीज़ होएगी मतलब कि जो भी कोडिंग होएगी वो सारी एग्जीक्यूट होएगी। अदरवाइज जो फॉल्स ਹੁੰਦੀ है तो अपने कोले वो स्टेटमेंट है जी वो लूप तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद अपने कोले है वाइल लूप। वाइल लूप ਦੇ ਵਿੱਚ देखो की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ डू वाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, वाइल लास्ट ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾइल ਹੈ ਵਾइल ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। डू वाइल ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੂਪ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ वाइल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੂਪ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ वाइल लूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ वाइल ਹੈ तो वाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जे अपनी कंडीशन हुई ट्रू तो अपने को की हो जाएगा, वाइल के अंदर जो भी आप कोडिंग लिखी है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उस तो बाद अपडेशन भी होएगी, मीनस इनक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आप अप्लाई किया होया वो होएगा। अगर अपने को उस तो बाद देखो जो ये सारा अप्लाई हो गया उस तो बाद फिर वो कंडीशन चैक करेगा, मीनस लूप अप्लाई हो जाएगा, लूप बार बार चलेगा। बट जे उस टाइम ते कंडीशन अपनी ट्रू की जगह फॉल्स होंदी है तो जी स्टेटमेंट आ वो लूप तो बाहर आ जाएगी। उस तो बाद अपने को हैगा आपां कंडीशनल भी कर लिया स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कर लिया। थर्ड वन अपने को है अनकंडीशनल ते जंपिंग स्टेटमेंट्स ने, ठीक है। ये अपने को 3 तरह दी होंदियां नेगियां। फर्स्ट वन होंदी है ब्रेक स्टेटमेंट, सैकेंड है गो टू, थर्ड होंदी है कॉन्टीन्यू, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट्स दे विच देखो की हैगा अपने को सब तो पहला अपने को कोई कंडीशनल कोड है, मीनस कोई कंडीशन हैगी, ठीक है, कंडीशनल कोड जो भी है। उस तो बाद आपां उहदे विच कोई कंडीशन अप्लाई की हुई है, जे अपनी वो कंडीशन होंदी है ट्रू तो अपना जिहड़ा कंडीशन कोड मतलब जो आप उहदे अंदर कोड लिखा होया वो सारा की हो जाएगा, रन होएगा, ठीक है। तो उस तो बाद की हो जाएगा, तो उस तो बाद वो ब्रेक होएगा, ठीक है। ब्रेक होने तो बाद की हैगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो उस तो बाद जे कंडीशन अपनी फॉल्स होंदी है तो वो पहला ही स्टॉप हो जाएगी। मीनस देखो ब्रेक नूं ध्यान नाल समझो की हैगा, जे अपनी कंडीशन ट्रू होंदी है तो अपने को जिहड़ा कंडीशनल कोड हैगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होएगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो उस तो बाद पर जे फॉल्स होंदी है तो वो पहला ही एग्जीक्यूट हो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उस तो बाद अपने को राइट साइड ते है गो टू स्टेटमेंट। गो टू दे विच की हुंदा कि अपने कोले अलग अलग लेबल्स ने, जिवें कह दो आप स्विच नाल रिलेट कर रही है, स्विच दे विच अलग अलग केस सीगे, मीनस आप सीधा मतलब कि पहले तो फर्स्ट तो थर्ड ते आप स्टैप करना चाहते हैं, ठीक है, जो आप जंप करना चाहते हैं तो आप गो टू स्टेटमेंट है जी ये यूज़ करते हैं। जिवें अपने कोले लेबल 1 दे विच अलग तो स्टेटमेंट है, लेबल 2 दे विच अलग तो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स ने, 3 लेबल्स दे विच अलग अलग ने। बट आप 2 नूं स्किप करके आप सीधा स्टेटमेंट 1 तो स्टेटमेंट 3 ते जाना चाहते हैं तो आप गो टू है जिहड़ा इहदे विच लिख दांगे स्टेटमेंट 1 दे विच आपां अप्लाई करांगे गो टू लेबल 3, मीनस असीं सीधा ही लेबल 3 ते जाना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने कोले होगी गो टू स्टेटमेंट। उस तो बाद अपने कोले है कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट दे विच की हुंदा है कि जो आपां देखो इस दे विच प्रोग्राम थोड़ा आपां शो किया होया, आई मतलब पहला आपां इनीशियलाइज कराता 1 तो ते अपनी कंडीशन अप्लाई होएगी 10 तक, ते आपां इंक्रीमेंट यूज़ किया होया। देखो पहला डू दिस, ठीक है, पहली स्टेटमेंट अपनी डू दिस, फिर अपने कोले फिर डू दिस है, फिर उस तो बाद अपने कोले इफ कंडीशन अप्लाई की हुई है। इफ कंडीशन दे विच आपां कॉन्टीन्यू किया होया हैगा, ठीक है। जे अपने को कंडीशन ट्रू होगी तो कॉन्टीन्यू हो जाऊगा, मतलब लूप है जोड़ा वो कॉन्टीन्यू चलता जाऊगा, ठीक है। तो उस तो बाद फिर अपने को डू दिस, ठीक है, फिर उस तो बाद डू दिस, फिर जे अपने को कंडीशन फॉल्स होंदी है एंड ते जाके जो इस तो बाद फॉल्स होंदी है, फिर उस तो बाद आप इत्थे जावांगे, ठीक है, वापस कॉन्टीन्यू कर सकांगे। मीनस कि आप जिवें आप पहला अप्लाई करते अपना लूप चल रहा 1 तो लैके 1 तो लैके 10 तक अपना लूप चल रहा, ठीक है। बट आप जिहड़ी कंडीशन अप्लाई की आप उत्थे लिखता कि i = 5,
ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂਗਾ, 5 6 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ 4 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।